دوستوں، ایک لمبی بریک کے بعد مزیدار ایپیسوڈ حاضر ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ناول تو میں نے بہت لکھ لیا ہے اور آپ کو پسند بھی آئے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ناول آپ کو مکمل ملے گا۔ ہاں، کچھ دیر ہوئی ہے اپلوڈ کرنے میں، مگر آپ جڑے رہے تو ناول پہلی چنگاری مکمل ہوگا۔ سب دوست اپنی اپنی سپورٹ دکھاؤ تاکہ آپ کو ایپیسوڈ ٹائم پر ملتی رہے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ بلویر سنگھ کے جانے کے بعد میں نے سریش کی غیر موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے گریز خان سے پوچھا، سریش کا کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا؟ گریز خان بولا، میری بات ہو چکی ہے، وہ واپس ممبئی چلا جائے گا۔ وہاں جا کر دیکھے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ واپس اپنی جاب پر چلا جائے، کیونکہ وہ ابھی تک کسی کی نظر میں نہیں آیا۔ اگر ڈاکٹر خان ہمارے ہاتھ نہ لگتا تو پھر اس کے لیے یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ویسے ایک بار اس سے صلح مار لینی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گا۔ گلریز خان بولا، میں نے اسے کہا تھا مگر اس نے اپنی فیملی ممبران کی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے معذرت کر لی تھی۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی۔ سریش کچھ ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں آرام کر رہا تھا جبکہ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دیت سنگھ آ کر ہمارے بیچ بیٹھ گیا۔ دیت سنگھ کافی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہا مگر ہمارے بیچ کور کے ٹاپک پر بات نہیں ہوئی۔ دوپہر تک ہم نارمل باتوں میں مصروف رہے۔ مجھے بلویر سنگھ کا شدت سے انتظار تھا کہ وہ کب آ کر ہمیں جانے کا کہے۔ 2 بجے کے قریب بلویر سنگھ نے آ کر بتایا کہ ہم آدھے گھنٹے میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اس لیے سب ساتھی تیاری کر لیں۔ میں نے کہا، صوفی لوگوں کو بتا دیا تھا؟ بلویر سنگھ بولا، ہاں ان کو بتا دیا ہے، وہ تیار ہو چکی ہے۔ میں نے کہتے ہوئے بولا، بلویر بھائی، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کتنی دیر تک پہنچ جائیں گے اور کیا ہم سرداروں کی حلیہ میں رہیں گے؟ بلویر سنگھ بولا، ہاں آپ لوگوں نے پاکستان پہنچنے تک سرداروں کی حلیہ میں ہی رہنا ہے اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پہنچتے ہمیں شام ہو جانی ہے۔ ویسے تو وہ زیادہ دور نہیں ہے مگر جن راستوں سے ہم نے جانا ہے وہ سارا راستہ کچا ہے، اس لیے وہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے لگ جانے ہیں اور ہمیں شام کا اندھیرا چھانے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ گلریز خان بولا، بلویر لالا، ایک بات کرنی تھی۔ بلویر سنگھ گلریز خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بولو لالا۔ گلریز خان بولا، سریش جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا اسے آپ یہاں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ بلویر سنگھ مسکراتے ہوئے بولا، خان، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ سریش کون سا میرے لیے غیر ہے؟ جس طرح آپ میرے بھائی ہیں اسی طرح سریش بھی ہمارا بھائی ہے۔ اس کی فکر مت کرو، اس کا جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتا ہے۔ یہاں اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جائے گا اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا اسے بحفاظت ممبئی پہنچا دیا جائے گا۔ گلریز خان مشکور کن نظروں سے بلویر سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ اس بیچارے نے ہماری خاطر اپنی نوکری تو کیا اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ اگر ہمیں فوری طور پر واپس نہ جانا ہوتا تو سریش کے صحت یاب ہونے تک ہم یہاں رکتے اور اسے بحفاظت اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے مگر ڈاکٹر مرلی لال کی سالی اور اس کی بیوی کو قابو کرنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی واپس جانا پڑ رہا ہے۔ بلویر سنگھ بولا، لالا، تم لوگ سریش کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ابھی آپ لوگ تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر بعد ہمیں نکلنا ہے کیونکہ لیٹ ہو گئے تو راستے میں آرمی کی چیکنگ کا مسئلہ بن جانا ہے کیونکہ اکثر راستوں پر آرمی کی گاڑی گشت پر ہوتی ہے۔ اس لیے میں احتیاط کے طور پر اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ اگر آرمی کی نظر سے ہماری گاڑی کو روک کر چیکنگ بھی کی جائے تو ان کو یہی لگے کہ گاڑی میں فیملی ہے۔ بلویر سنگھ کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ اپنی فیملی کو اس لیے ساتھ لے جا رہا ہے تاکہ دوران چیکنگ صوفی لوگوں پر شک نہ ہو کیونکہ وہ انڈین پنجابی میں اتنی مہارت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد بلویر سنگھ چلا گیا۔ بلویر سنگھ کے جانے کے بعد گلریز خان نے سب ساتھیوں کو تیار ہونے کا کہا۔ ان سب کی تیاری میں اتنا وقت نہیں لگنا تھا کیونکہ انہوں نے صرف ہتھیاروں کو بیگز میں رکھنا تھا۔ کچھ دیر بعد بلویر سنگھ کے ساتھ اس کی ساری فیملی اور صوفی لوگ آ گئے مگر امت کور نہیں تھی۔ منمیت کور کی غیر موجودگی پر مجھے حیرت بھی ہوئی مگر میں اس کے نہ آنے کی وجہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ گھر واپس جانے کی خوشی میں صوفی اور ماہی کے چہرے پر خوشی کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم کوسٹر نما بس میں سوار ہو گئے۔ اسلحے کے بیگوں کو گاڑی کی مخصوص ڈکی میں چھپا دیا گیا۔
रवानगी के वक्त हम सब सरेश से बड़ी गर्मजोशी से मिले और उसका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा किया और फिर दोबारा मिलने की उम्मीद दिलाकर हम वहां से रुखसत हो गए। बिलवीर सिंह की हवेली में मौजूद तमाम अफराद में सिर्फ सरेश और तकोर हमारे साथ नहीं आए थे, बाकी बिलवीर सिंह की बीवी और 3 बेटियां और घर की 2 खास मुलाजमा हमारे साथ थीं। हम सबको एक बात समझा दी गई थी कि अगर चेकिंग के लिए गाड़ी रोकी जाए तो जिससे भी सवाल किया जाए तो उसने यही कहना है कि हम नानक नगर शादी पर जा रहे हैं। वैसे तो हम वक्त पर निकल पड़े थे, इसलिए शाम होते ही हम नानक नगर पहुंच सकते हैं और आर्मी की गाड़ी रात को गश्त पर निकलती है। फिर भी एहतियात के तौर पर सबको समझा दिया गया था कि उन्होंने क्या बयान देना है। बिलवीर सिंह की समझदारी और हमारे लिए इसकी इतनी फिक्रमंदी काबिल तारीफ थी। अगर देखा जाए तो बिलवीर सिंह हमारी हिफाजत के लिए अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल रहा था और ऐसा करना कोई आम बात नहीं थी। डॉक्टर खान को बेहोश करके एक खास किस्म की बोरी में बंद करके सबसे आखिरी सीट के नीचे इस अंदाज में डाल दिया कि इसको ऑक्सीजन भी मिलती रहे और इस पर किसी की नजर भी न पड़े। मैं और सूफी इकट्ठे बैठ गए। इसी तरह बिलवीर सिंह और उसके 2 करीबी रिश्तेदार साथी उनकी फैमिली के साथ बैठ गए, जबकि माही और गिलजेब हमारी अगली सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी कच्चे रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। सूफी मेरे बाजू को अपने बाजू की गिरफ्त में लेकर मेरे कंधे पर सर रखकर बोली, यासिर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम वापस घर जा रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यकीन हो रहा तो अपने हाथ पर दिंदी काट कर देख लो, खुद ही यकीन आ जाएगा। मेरी बात सुनकर सूफी मेरे कंधे पर दांत गाड़ते हुए बोली, तुम्हारे काटती हूँ, जब तुम्हारी चीख निकलेगी तब मुझे यकीन आ जाएगा। ये कहकर सूफी ने मेरे कंधे पर दांत गाड़ दिए। मैं झटके से कंधा बचाते हुए बोला, वो तेरी। सूफी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, अब यकीन आ गया। मैं कंधे को मसलते हुए बोला, यकीन तुम्हें नहीं हो रहा था और दिंदी मेरे काट दी। सूफी हंसते हुए मुझे कंधा मार कर बोली, फिर कहना मैं सकटाती हुए बोला, यार तुम पागल तो नहीं हो गई? ये भी कोई कहने वाली बात है। सूफी एक बार फिर से मेरे बाजू में बाजू डालकर मुंह से चिमटती हुए बोली, हाँ पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में और कुछ। मैं नखरा दिखाते हुए मुंह बिसोर कर बोला, वो तो हरकतों से मालूम पड़ रहा है। सूफी मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा शोखी मत बनूं, पहले तो कंधे पर दिंदी काटी है, अब यहाँ काटूंगी वो भी जोर से। मैं जल्दी से सूफी की उंगली पकड़कर अपनी गर्दन से हटाकर अपने होंठों की तरफ बढ़ाने लगा। सूफी मेरा इरादा भांपते हुए हल्की सी चीख मारते हुए हाथ को खींचने लगी। सूफी की चीख सुनकर करीब की सीटों पर बैठे लोगों ने चौंक कर हमारी तरफ देखा। उनको अपनी जानिब मुतवज्जे होते देखकर मैंने जल्दी से सूफी की उंगली छोड़ दी। हमारी हरकत देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सूफी मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए बोली, बदतमीज, सब देख रहे हैं। मैं सरगोशी में बोला, ना पंगे लो। सूफी बोली, मैंने क्या किया है? तंग तो तुम कर रहे हो। मैंने कहा, एक दफा घर पहुंच लेने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तंग करते हैं। सूफी बोली, धमकी दे रहे हो? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। सूफी बोली, अच्छा जी। मैं इसकी नकल उतारते हुए बोला, हाँ जी। सूफी बोली, मैं भी देख लूंगी तुम्हें। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सूफी इधर उधर देखकर मुझे कंधा मारकर बदतमीज कहकर सर झुकाकर बैठ गई। मैं सूफी को कंधा मारते हुए बोला, क्या हुआ? सूफी नखरा दिखाते हुए खिड़की की जानिब रुख करके बाहर देखने लग गई। सूफी ने शोख गुलाबी रंग की सादा शॉर्ट शर्ट और सफेद शलवार पहन रखी थी। इसके यूं दूसरी जानिब चेहरा करने पर मैंने इसकी जानिब देखा तो इस दौरान मेरी नजर उसके सीने के उभार पर पड़ी जो शर्ट को फाड़ने की कोशिश में था। सूफी के पिस्तान को देखते ही मुझे शरारत सूझी। मैंने उधर उधर देखकर दाएं हाथ को अपने बाईं बाजू के नीचे से गुजारकर सूफी के बाजू को नीचे से इसके पिस्तान को पकड़कर दबा दिया। सूफी को जैसे करंट लगा, इसने गुस्से से जोर से मेरे बाजू पर कोहनी मारते हुए दोनों बाजों को पस्तानों के ऊपर फैलाकर मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। मैंने तो शरारत के तौर पर यह हरकत की थी, मगर जैसे ही मेरे हाथ की उंगलियों ने रेशम के धागों से बने हुए नर्म मुलायम पस्तानों को छुआ, मेरे पूरे वजूद में सरसराहट दौड़ गई। इस वक्त मेरे अंदर की हालत क्या थी ये मैं ही जानता था, मगर बज़ाहिर में अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आगे की जानिब देखने लग गया। लाख कोशिश के बावजूद मेरा ध्यान बार बार सूफी के बाजों के नीचे छुपे रेशम के गोलों पर जा रहा था।
मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी सूफी को अपनी आगोश में ले लूं, मगर मजबूरी थी, सिवाय खुद पर कंट्रोल करने के मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। सूफी को शायद मेरी हालत की खबर हो गई थी। इसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मेरी हालत से महसूस हो रही है। मुझे कुछ और तो नहीं सूझा। मैंने सूफी की नर्म मुलायम रान पर हाथ रख दिया। सूफी ने घबरा कर मेरे बाजू पर कोहनी मारते हुए सरगोशी में कहा, यासिर, इंसान बन जाओ, कम अज कम मौका तो देख लो, हमारे अलावा यहाँ कितने लोग हैं। मैं बेबसी का इजहार करते हुए दोनों मुट्ठियों को भींचकर अगली सीट की बैक पर मुक्का मार दिया। मक्का मारते हुए मैं ये भी भूल गया कि आगे गिलजेब सर टिकाए बैठी है। गिलजेब ने चौंक कर मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं अपनी बेवकूफी पर सरपेट कर रह गया, जबकि सूफी की हंसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने इसे घूर कर देखा और साथ ही अपना रुख बदलकर दूसरी जानिब खिड़की से बाहर के मनाजिर देखने में मसरूफ हो गया, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था आज मेरा यौम बेइज्जती है। इसी दौरान मेरे दिमाग में कोर का ख्याल आया कि क्या वजह हो सकती है कि वो हमारे साथ नहीं आई। हालांकि मुझे इसके न आने से इत्मीनान हुआ था कि अच्छा हुआ वो नहीं आई, फिर भी ये बात मेरे दिमाग में अटक गई थी। कोर का ख्याल आने के बाद मैंने 2-3 दफा कोशिश की कि सूफी से कोर का मौजू छेड़ो, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। हवेली से निकले हमें 2 घंटे हो गए थे। अभी तक बस कच्चे रास्तों से होते हुए जा रही थी। दूर दराज तक सिवाय फसलों के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। कच्ची सड़क होने के बावजूद ड्राइवर गाड़ी मुमकिन स्पीड तक भगाए जा रहा था, जिसकी वजह से बार बार जंप लग रहे थे। कुछ देर हमारे बीच खामोशी रही। बिलाखिर सूफी ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, यासिर, एक बात पूछूं? मैंने चौंकते हुए कहा, हाँ पूछो। सूफी बोली, कोर और तुम्हारा क्या चक्कर है? सूफी की बात सुनकर ना जाने में कैसे खुद पर कंट्रोल कर पाया, वरना इसके जुबानी सवाल पर शायद मैं उछलकर सीट से खड़ा हो जाता। मैं खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, क्या मतलब तुम्हारा? सूफी मोड़कर पीछे देखते हुए सरगोशी में बोली, कोर को तुम मिले थे, वो तुम्हें मिली थी? एक बार फिर सूफी ने जुबानी सवाल कर दिया। अब सूफी क्या जानना चाहती थी ये तो मुझे अभी कंफर्म नहीं था, मगर सूफी का जुबानी सवाल सुनकर मेरे अंदर के चूर ने मेरी फाड़ने वाली कर दी थी। मैंने झुंझला कर कहा, क्या मतलब तुम्हारा? खिलकर बात करो, क्या कहना चाहती हो? सूफी मेरी जानिब गौर से देखते हुए मशकूक अंदाज में बोली, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? अपनी गलती का एहसास होते ही मैं खुद पर कंट्रोल करते हुए सरगोशी में बोला, यार, पीछे कोर के कजिन बैठे हैं, तुम जो पूछना चाहती हो अभी खामोश रहो बेहतर है। इस मौजू को घर जाकर तसल्ली से कर सकते हैं। अभी इस मौजू पर बात करना मुनासिब नहीं है। मेरी बात सुनकर सूफी खामोश हो गई। इसके बाद हमारी इस मौजू पर बात नहीं हुई। सूफी ने खुद ही मौजू बदलकर अपनी अम्मी के बारे में बातें करना शुरू कर दी। सूफी का मोड देखकर मुझे इतना यकीन हो गया है, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है। शायद बिलवीर सिंह की किसी बेटी ने सूफी को कोर के करतूत बता दिए हों। बातों के दौरान हमें पता ही नहीं चला कि कब हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। गाड़ी रुकने पर मैंने चौंक कर देखा तो बिलवीर सिंह सीट से खड़ा होते हुए बोला, चलो भाई, सब गाड़ी से उतर जाओ, हमारी मंजिल आ गई है। बिलवीर सिंह की बात सुनकर मैंने सर उठाकर शुक्र अदा किया। कुछ देर में तमाम अफराद गाड़ी से उतर गए। डॉक्टर खान को भी सीट के नीचे से निकाल लिया गया। शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैल चुका था। जिस जगह हम आए थे ये चंद घरों पर मुश्तमिल छोटा सा बेकवर्ड गांव था, जहां लाइट तक नहीं थी। मकान भी कच्चे मिट्टी के बने हुए थे। बिलवीर सिंह की तकलीद में चलते हुए हम एक हवेली नुमा बने कच्चे घर में दाखिल हुए। हवेली के अहाते में भैंसें वगैरह बंधी हुई थी, जबकि सामने 3-4 कच्चे कमरे बने हुए थे। हवेली में एक बुजुर्ग सरदार और एक जवान लड़का मौजूद था, जो बिलवीर सिंह से बड़े पुरजोश होकर मिले। मुझे तब हैरत हुई जब जहांजेब खान बुजुर्ग और लड़के से ऐसे मिला जैसे इससे बड़ी पुरानी जान पहचान हो। मुझ समेत बाकी साथी भी उनसे मिलने के बाद कमरों की जानिब चल पड़े। तमाम लेडीज को एक कमरे में भेज दिया गया, जबकि हम सब 2 कमरों में चले गए। डॉक्टर खान को बोरी समेत निकाल कर नीचे लिटा दिया गया था। इसकी सिर्फ सांसें चल रही थीं, जबकि इसका जिस्म बेजान था। इसे कम अज कम 24 घंटे बाद होश आना था, तब तक हमने पाकिस्तान पहुंच जाना था। कुछ देर बाद बिलवीर सिंह ने हम सबको एक जगह इकट्ठा करके हमें जरूरी हिदायत देते हुए कहा,
वैसे तो जहाजेब खान आगे की सारी सूरत हाल से वाकिफ है, फिर भी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। यहाँ से हमने 1 किलोमीटर पैदल सफर करना है। इसके बाद तुम लोगों को सुरंग में दाखिल कर दिया जाएगा। सुरंग से 15 मिनट की मुसाफत के बाद अब पाकिस्तान में जाकर निकलोगे, इसलिए आपको किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं। इस सुरंग के बारे में सिवाय हमारे किसी को भी इल्म नहीं है। मैंने कहा, बिलवीर भाई, यहाँ से हम किस टाइम निकलेंगे? बिलवीर सिंह बोला, जैसे ही रात की स्याही फैल जाए हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी फैमिली यहाँ ही रहेगी क्योंकि उनका आगे कोई काम नहीं है और न ही उनकी जरूरत पेश आनी है। मैंने कहा, ठीक है बिलवीर भाई, जैसे आपको बेहतर लगता है। हमें मजीद 2 घंटे वहां रुकना पड़ा। जैसे ही हर तरफ गुप अंधेरा हुआ, बिलवीर सिंह ने हमें वहां से निकलने का कहा। हमारे पास 2-3 टॉर्च लाइट्स थी, जिसकी वजह से हमें चलने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। 10-15 मिनट की मुसाफत के बाद बिलवीर सिंह ने टॉर्च लाइट्स बंद कर दे। रास्ता हमवार था, इसलिए हम एक दूसरे की तकलीद में चलते जा रहे थे। मेरे पीछे सूफी थी, इसके पीछे माही और माही के पीछे गिलजेब और उसके पीछे गुलरेज खान और कुछ साथी थे। हम फसलों के दरमियानी 2 फुट चौड़े कच्चे रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारों अतराफों का आलम था। अंधेरा इतना शदीद किस्म का था कि हम एक दूसरे के जूतों के नीचे सफेद पट्टी की तकलीद में चल रहे थे, जबकि सूफी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही थी। मेरे कंधे पर भारी भरकम बैग था, जिसमें सूफी लोगों के कपड़े थे, जो बिलवीर सिंह की बेगम ने जबरदस्ती साथ ले जाने के लिए फोर्स किया था, जबकि मेरे कपड़ों का बैग सूफी के पास था, जिसका कोई खास वजन नहीं था। 15 मिनट की मुसाफत के मजीद 10 मिनट बाद बिलवीर सिंह ने टॉर्च जलाई तो चंद कदमों के फासले पर ट्यूबवेल और एक कमरा दिखाई दिया। बिलवीर सिंह कमरे की जानिब चलने लगा। हम भी इसकी तकलीद में चलते हुए कमरे में पहुंचे। कमरे में दाखिल होकर बिलवीर सिंह और जहाजेब खान ने मिलकर बेलचे के साथ मखसूस जगह से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। 2-3 मिनट में उन्होंने बड़ी महारत से मतलूबा मिट्टी हटाकर वहां से स्टील का ढक्कन उठाकर साइड पर रख दिया। साथ ही बिलवीर सिंह ने जब टॉर्च की रोशनी मारी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे सीढ़ियां जाती दिखाई दी, जिनको बड़ी महारत से नीचे उतारा गया था। जहाजेब खान ने 2 साथियों को अंदर दाखिल होने का कहा और खुद भी अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर खान को एक साथी ने कंधे पर उठाकर रखा था, इसे भी नीचे जाने का कहा गया। इसके बाद सूफी लोगों को नीचे भेजने के बाद मैं बिलवीर सिंह से मिलकर उसका तहदिल से शुक्रिया अदा करने के बाद नीचे उतर गया। सुरंग इस अंदाज में खोदी गई थी कि 5.5 फुट का आदमी बड़े आराम से सीधा चल सकता था। मेरे पास जो टॉर्च थी मैंने भी नीचे जाकर जला दी थी, जबकि आगे वाले साथियों के पास भी टॉर्च थी, उन्होंने भी टॉर्च जला रखी थी और पीछे आने वाले साथी ने भी टॉर्च की रोशनी कर दी थी, जिसकी वजह से सुरंग में काफी रोशनी हो गई थी। मैंने नीचे उतरकर सूफी लोगों को चलने का कहा। पहले तो सूफी लोग घबराएं कि शायद अंदर सांस ही ना बंद हो जाए, मगर अंदर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे एसी चल रहा हो। हमारा सफर आसान था, इसलिए हमने कपड़े वगैरह साथ लिए थे। अगर हालात इसके बरक्स होते तो फिर तो शायद हमें जान बचाकर सही सलामत पहुंचने की फिक्र होती। 20 मिनट की बजाय हम आधे घंटे की मुसाफत के बाद सुरंग के आखिर में पहुंच गए। वहां भी वैसी ही सीढ़ियां ऊपर की जानिब जाती नजर आए। सीढ़ियों को देखकर दिल खुशी से झूम उठा। सीढ़ियों को देखकर यह महसूस होने लगा जैसे ये सीढ़ियां सुरंग से निकलने की बजाय अपने घर में दाखिल होने वाली सीढ़ियां हैं। इस वक्त की कैफियत को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। चंद कदमों की दूरी मीलों की दूरी लग रही थी। बस में नहीं था सुरंग फाड़कर अपनी पाक सरजमीन पर कदम रखते ही सजदारेज होकर ऊपर वाले का शुक्र अदा करता। मुझे ये देखकर खुशी के साथ हैरानगी भी हुई कि ऊपर का रास्ता खुला हुआ था। शायद हमारे आने की खबर पहले से दे दी गई थी, जिसकी वजह से रास्ता खोल दिया गया था। आगे वाले साथी एक एक करके बाहर आ गए। मैंने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पांव रखा तो अपने वतन की खुशबू सूंघकर और 1000 मुश्किलों से गुजरकर अपने घर खैरियत से पहुंचने की खुशी में अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सका और आंखों से आंसू जारी हो गए। आखिरी सीढ़ी क्रॉस करके जब सुरंग से बाहर निकला तो खुद को कमरे में मौजूद पाया। सूफी लोग भी बाहर निकलकर कमरे में खड़े थे। मैंने बाहर बैग एक तरफ फेंका और जमीन पर गिरते हुए ऊपर वाले के हुजूर सजदारेज हो गया। जितना सिर्फ दिल से शुक्र अदा कर सकता था किया।
उठकर हम सब एक दूसरे के गिले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादें देने लगे और ऊपर वाले का नाम लेकर बुलंद आवाज में नारे लगाने लगे। सूफी माही गुलजेब भी खुशी से निढाल एक दूसरे के गिले मिलकर गुल्लुगीर लहजे में मुबारकबाद दे रही थी। जहाजेब ने रास्ते को वापस बंद किया और हमें कमरे से बाहर ले आया। बाहर निकले तो ये खस्ता हाल टूटा फूटा कच्चा घर था। हमारे बीच दो नए चेहरे थे जिनका तारुफ हमें रिसीव करने वालों के तौर पर कराया गया। कमरे से निकलकर अंधेरे में घर का जायजा लेते हुए मैंने जहाजेब खान से पूछा, लाला हम इस वक्त कहाँ हैं? जहाजेब खान बोला, हम इस वक्त सबीहा खातून के गांव चेक भारत से 2 किलोमीटर दूर हैं। अभी हम बात ही कर रहे थे कि इसी दौरान घर से बाहर गाड़ियों की हेडलाइट्स चली और मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाए गए। जहाजेब खान बोला, लो जी हमें ले जाने के लिए गाड़ियां हमारी मुंतजिर हैं। 2 अफराद जो हमें रिसीव करने आए थे उन्होंने हमें जल्दी यहां से निकलने का कहा। वैसे भी ये बॉर्डर लाइन एरिया था, किसी वक्त भी आर्मी की गाड़ी आ सकती थी, इसलिए हमने बातों में टाइम जाया करने की बजाय गाड़ियों की तरफ रुख किया। हम घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े जो लकड़ी का खस्ता हाल दरवाजा था। दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो सिया रंग के 2 वैगन डाले और सिया रंग की टोयोटा कार खड़ी थी। जहाजेब खान बोला, यासिर तुम मेरी बहनों को लेकर कार में बैठ जाओ, हम पीछे वाली गाड़ियों में बैठ जाते हैं। जरा जल्दी करना, यहां हम ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। मैंने बैग कार की डिक्की में रखा और सूफी लोगों को पिछली सीट पर बिठाकर खुद फ्रंट सीट पर बैठते हुए ड्राइवर को सलाम किया तो उसने वेलकम टू पाकिस्तान कहकर मेरे साथ हाथ मिलाया। कुछ देर में हम वहां से निकलकर आगे की जानिब बढ़े। 10 मिनट में हम सबीहा खातून की आलीशान हवेली के बाहर पहुंच गए। गाड़ियों को देखते ही गेट खोल दिया गया। ड्राइवर ने गाड़ी अंदर ले जाकर हवेली के अहाते में दाएं जानिब पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी रोक दी। सूफी बोली, यासिर ये हमें कहाँ ले आया है? मैंने कहा, ये हमारी मोहसिन सबीहा खातून की हवेली है जिसकी बदौलत में तुम तक पहुंच सका और इसी की बदौलत आज हम सही सलामत अपने वतन वापस पहुंच पाए हैं। सूफी बोली, क्या रात हम यहाँ रुकेंगे? मैंने कहा, नहीं जान, यहाँ कुछ देर रुक कर सबीहा खातून का शुक्रिया अदा करके हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। सूफी बोली, मगर यासिर मुझे अभी अम्मी के पास जाना है। मैंने कहा, सूफी क्या हो गया है यार, कुछ देर बाद चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं कर रहा कि फटाफट अपने घर पहुंचकर घर वालों से मिलो? मगर यार इखलाकी तौर पर भी हमारा हक बनता है कि अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करें। देखो हमारे लिए स्पेशल गाड़ियां भेजकर हमें इतनी इज्जत दी है। सूफी मुंह बिसूरते हुए बोली, ओके ठीक है, मगर यहाँ से जल्दी निकलना। मैंने कहा, ठीक है, बस कुछ देर रुकने के बाद हम घर के लिए रवाना हो जाएंगे। गाड़ी से निकलकर हम वहीं खड़े हो गए। इसी दौरान बाकी के सारे साथी गाड़ियों से निकल आए। एक साथी ने डॉक्टर खान को भी डाले के पीछे से उतार कर कंधे पर लाद लिया। डॉक्टर खान को देखकर मुझे थोड़ी हैरानगी भी हुई कि इसे क्यों गाड़ी से उतारा है। फिर साथ ही अगला ख्याल आया कि कहीं सबीहा खातून के हवाले करने का तो प्लान नहीं, क्योंकि इन लोगों ने सबीहा खातून को कत्ल करने के बदले सूफी लोगों की रिहाई की मेरे साथ शर्त रखी थी। खैर मुझे इस पर क्या एतराज हो सकता था क्योंकि मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया था। बाकी जहां तक डॉक्टर खान की बेगम जिया भाभी और उसकी बहन अरोश की बात थी, इसको वहां से उठा लाएंगे। अभी तो मुझे अबू और बाकी के घर वालों से मिलने की बेचैनी थी, इसलिए मैंने फी अलहाल डॉक्टर खान को ज्यादा जहन पर सवार नहीं किया। जहाजेब खान मेरे करीब आकर बोला, यासिर लाला तुम सोच रहे होगे कि घर जाने की बजाय यहाँ क्यों ले आए, तो हमारा हक बनता है कि सबीहा खातून का शुक्रिया अदा करें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहाजेब लाला, अगर अपना भी यहाँ लेकर आते फिर भी मैंने सबीहा खातून का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं जाना था। जहाजेब खान बोला, सूफी बहन लोगों को बेशक अब गाड़ी में बिठा दें, उनका वहां जाना जरूरी नहीं है। वैसे भी वहां सारे मर्द हजरात जमा होंगे, ऐसे में उनका वहां जाना मुनासिब भी नहीं है। जहाजेब खान की बात मेरे दिल को लगी। मैंने झट से कहा, जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। जहाजेब खान गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, सूफी बहन आप लोग गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं, फिर आप लोगों को आपके घर छोड़ आएंगे। दोस्तों नावल बहुत मजे का होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एपिसोड का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे।